Yes, students, we are going to discuss here rational numbers. Before going into the rational numbers, we will revise the numbers. If we say n, that is natural number. So we know that natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, so on. They are the natural numbers or counting numbers. Now after that we also know the W, which is represented for whole number. In whole number, 0 is also taken into consideration and to taken into account. 1, 2, 3, 4, 5, like this. So 0 and all these numbers, they are come under this category. We are representing it by W. Then it comes to either we say it I or Z. Okay, I or Z, it comes under the category of integers. Okay, it is positive integers and negative integers. Negative integers means, for an example, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, this. Okay. Now here these are the positive integers, these are the negative integers. 0 is neither positive nor negative. Then it comes to another fractions. Fractions, the number of the form a upon b, say a upon b, where a and b are natural numbers. A and b are natural numbers. Okay. For an example, we can have 2 by 3, 5 by 7, 9 upon 1 by 130. These come under the category of fractions. Now then it comes to rational numbers. Rational numbers which are in the form of p upon q. Rational numbers which are in the form of p and q, where q is not equal to 0. Where q is not equal to 0 and p and q both are integers. Okay, so we can have integers, means they may be positive, they may be negative. For an example, say 7 minus 5 minus 3 by 4. Okay, so this is rational numbers. Now if we go through it here, we will be having equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers
equivalent rational numbers, where what we will be having, if we are having a p by q, its equivalent rational number means ये मल्टीप्लाइड होगा m के साथ में, तो q भी किससे मल्टीप्लाइड होगा, सेम इंटीजर से। m एंड p and q are integers, m is also an integer which is multiplied with p, q is also multiplied with m. For an example, if we are having 1 by 2, the next number, if we multiply both 2 by 4, this is also 3 by 6, this is also an equivalent, 4 by 8, this is an equivalent rational numbers. Equivalent है इनका, इनको हम क्या कहेंगे, we will call it as an equivalent rational numbers, ठीक है। Next, if we go through it, अब हम देखते हैं positive rational numbers that we have seen, negative rational numbers and seen. Now we will go with the properties of rational numbers. Properties of rational number. Properties of rational number. Property 1. If we are taking, say, a and b, a upon b is a rational number, and if we are multiplying with m is a non-zero integer, m is a non-zero integer, means zero नहीं है, तो if we are multiplying a with m, similarly b को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m से, तो इसका जो रिजल्ट होगा a अपॉन बी के इक्वल होगा, a अपॉन बी के इक्वल होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा भाई -3/4, इफ आई एम टेकिंग 2, m equal to 2, so -3 multiplied with 2 and 4 is also multiplied with 2, we are going to have -6/8, -6/8. Okay, again if I am having m is equal to 3, -3 multiplied with 3, 4 is also multiplied with 3, will give you -9/12, -9/12. So the numbers are the rational numbers which we are getting here, they are equivalent to this. ये किसके हैं, इस -3/4 के इक्विवेलेंट है, मीन्स a अपॉन b मल्टीप्लाई करें हम m के साथ में तो a इंटू एम, और b के साथ मल्टीप्लाई करें तो m इंटू बी, what we are getting a equivalent rational numbers. क्या मिल रहा है हमको, equivalent rational numbers, equivalent rational numbers. सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं हम, अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, इसी को यदि हम डिवाइड करें, से a अपॉन b, सो इफ
वी आर डिवाइडिंग इट बाय सेम इंटीजर b बाय m, तो जो हमको मिलेगा वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वैल्यू लेते हैं -32 अपॉन 40। -32 को इफ आई एम डिवाइडिंग इट बाय 8 एंड 40 को भी हमको सेम से डिवाइड करना है 8 से, तो क्या होगा, ये -4 -5 क्या मिल गया हमको, -4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि इट इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। प्रॉपर्टी 3 को देखें हम, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ वी हैव टेकन a अपॉन b विच इज इक्वल टू c अपॉन d, ये दो रेशनल नंबर्स हमने ले लिए, वी हैव टेकन दीज टू रेशनल नंबर्स एंड इफ दे आर इक्वल, इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या शो कर रहा है आपको कि इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, a इंटू डी, a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, a इंटू डी विच इज इक्वल्स टू c इंटू बी। ओके, ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द नंबर्स 3 -4 and -5 6 is greater। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, हम इसको ले लेते हैं 3 -4। अब यहाँ देखें हम कि 3 if it is multiplied with -1, -4 is also multiplied with -1, तो रिजल्ट क्या होगा, -3/4, -1 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस विल गिव द प्लस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाइड विथ गिव्स प्लस। तो हमने क्या किया, जो न्यूमरेटर था उसको नेगेटिव कर दिया और पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास में क्या है, अदर नंबर विच वी हैव -5/6। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कीप इन जस्ट सी हियर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर नेगेटिव था, माइनस का था, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। ये न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो यदि ये भी नेगेटिव था डिनोमिनेटर, तो हम इसको भी क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। बट अब इन दोनों को लेने के बाद में अब हम इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जिसका 4 इंटीजर और ये डिनोमिनेटर जो है एंड 6, इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कैसे निकालना है हमको पता है, 4 6 आप लिख लें इस टाइप से, 2 2 जा 4, 2 3 जा अगेन इट इज 1 3 3। ये माइनस का साइन नहीं है ना, अब माइनस का साइन, इसको कामा भी लगाया जा सकता है वैसे, यू कैन यूज कामा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कामा लगा देता हूँ।
आई एम यूजिंग इट इन लाइक दिस। तो 4 and 6, एलसीएम ऑफ 4 and 6, एलसीएम हमेशा याद रखना है, 10th में काम में फिर से आता है। तो 2 into 2 into 3 विच इज इक्वल्स टू 12। अब एलसीएम क्या आ गया आपका 4 and 6 का 12 आ गया। इन दोनों इंटीजर्स को आप लें, दोनों रेशनल नंबर्स को लें, -3/4 को हमने पहले लिया। अब इसके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है 12 करना है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 है, 4 3 का कितना होगा 12। तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9/12। numerator as well as denominator is multiplied with 3 to get it to equivalent to 12। इसको हमने 12 बनाना है। सिमिलरली इसको भी हमको क्या करना है 5/6। अब यहाँ 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 6 2 are 12, we can take 6 into 2 -5 into 2 which is equals to -10/12। ओके, अब ये दोनों के न्यूमरेटर तो डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, पर डिनोमिनेटर क्या सेम होगा। क्यों सेम होगा कि 4 और 6 का एलसीएम लेके हमने एलसीएम निकाल लिया और उन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया। अब इक्वल करने से हमको क्या मिलेगा, हमको कंपैरिजन करना आसान हो गया। नाउ सी हियर आई एम राइटिंग इट -9/12 जो कि -3/4 है, -5/6 जो -10/12 है। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, दोनों के न्यूमरेटर को हम ऑब्जर्व करें। नाउ हियर वी हैव गॉट -9/12 and -10/12 बाय मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया -9/12 और यहाँ -10/12, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर ऑफ दीज टू इज सेम। अब इनका कंपैरिजन हम देखें तो -9/12 डिनोमिनेटर सेम है, -10/12। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 0 -1 -2 एंड -10 विल गो इन दिस डायरेक्शन, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में होगा। -9 की जो वैल्यू है वो -10 से ग्रेटर होगी। जो न्यूमेरिकल वैल्यू हायर साइड पे है मीन्स 9 and 10, बट यहाँ नेगेशन में नेगेटिव है, इसलिए -9/12 एंड -10/12 में -9 विल बी ग्रेटर देन -10। तो यहाँ पे अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, -3/-3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द नंबर 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। तो इसके लिए हमने मेथड देखा, हाउ वी हैव टू डू, वी हैव टू गो थ्रू इट बाय कैलकुलेटिंग द एलसीएम। एलसीएम को कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम को निकालने के लिए हमने मेथड देख ली, देन इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल वैल्यूज इक्वल होने के बाद में हमने इन दोनों को कंपेयर किया एंड फाइनली वी हैव गॉट दिस रिजल्ट इज -9 is greater than -10, so we can say 3/-4 is greater than -5/6।